I'm at Gingal in the Uri sector, very close to the line of control. It's also a place which is adjacent to a power project. Now, I want to show you this tree. This is telling the story that a Pakistani shell just landed here at this place and all caused damage here. The markings on this tree and on the other tin sheets here bear the markings of the splinters of that shell. Now, Pakistan has been shelling border village in Uri and in other sectors at the line of control in Jammu and Kashmir. Already 15 people have been killed in Pakistani shelling in the Poonch region, but we are in Uri right now. There are many people who have been injured in Uri as well. You can see these tin sheets, and I also want to show you this car. It bears the marking of the splinters. The splinters have really made holes inside this car and it's been damaged. And this house that's completely shattered by the impact of Pakistani shelling. Remember, Pakistanis are using artillery to target Indian villages, Indian positions, and target civilians. You can see there are glasses that are scattered all around. This is the impact of the shelling, a massive shelling that's taking place in Uri and other sectors. During the night, earlier it was just small arms that were used, but now artillery is also being used by Pakistan. Now, this is the situation. If we can go inside, I want to show you this room. You can see the splinter marks everywhere. There are holes that have been created. This is riddled with splinters. It's of course it's been a big shell that has been dropped, that's been fired at this place, and that's really damaged this house. Its residents have moved out towards safer places, but damage have been caused here by the shelling from Pakistan, and those markings on the walls tell you a story that what's happened here. In fact, the situation at the borders continues to remain tense, continues to remain very tense after for the last many days there have been repeated ceasefire violations almost on a daily basis. I want to go towards this side. You can see this house. The condition of this house, it's completely broken. So we try and show you what's happened. Here are the broken glasses. The window panes have been shattered by the impact of the shell. You can see, if the camera can pan up, these windows have also been broken by the impact of the shelling from Pakistan. Of course, they're using long-range shells, artillery, targeting Indian positions and civilian areas, and that's caused massive damage to residential areas at the line of control, particularly in the Poonch sector, where 15 people have already been killed in Pakistani shelling and many others are injured. Here the camera can also pan and show you the impact. All these glasses are, these window panes broken, glasses shattered and spread all over. Luckily, there are some people who have been injured in the shelling at Uri, but there aren't any fatal casualties in the Uri sector. Nevertheless, that people have moved out. आप बताइए यहाँ किस तरह के हालात हैं? हाँ, आप किस तरह के हालात हैं? हालात अब ठीक है। यहाँ पे तो काफी शेलिंग हो गई है। मकान मैं उड़ी रहता हूँ। हाँ, तो मैं काम पे आया हूँ। काम ये क्या आपने सुना? ये तो काम चल रहा है इस मकान पर, सारे शीशे विशे। आप यहीं पे रहते हैं? जी। हाँ, बताइए क्या बोलना है आपको? आया वापस। क्या बोल रहे हैं? किस तरह के हालात है? हालात क्या बेहतर जानते हैं? हालात के बारे में बेहतर जानते हैं। काफी नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हुआ इनका। क्या नुकसान हुआ है? ये देखो ना, ये पिलर की हालत, देखो, शीशे, सब चीज़ खत्म हो गई है। गाड़ी की हालत,
यहाँ पे जो लोग रह रहे थे वो कहाँ गए? ये दूसरे मकान में चले गए। दूसरे वो उस वक्त यहीं पे थे, हाँ, उस वक्त यहीं थे, बच्चे बुजुर्ग सब यहाँ थे। लेकिन वो जख्मी हो गए, इंजर्ड हो गए या उनको कुछ चोट आई? पता नहीं उसके बारे में, नहीं लेकिन पता। वो यहाँ से अब निकल गए जी, हैं, जी। सेफ हो गए जी हैं। जी। तो यहाँ पे ये कितने गोले पड़े हैं यहाँ पे? एक पड़ा है, एक पड़ा। गोला। और एक गोली की वजह से ये मकान भी डैमेज हो गया, इसके पीछे जी, वाला जी, मकान दूसरा भी मकान डैमेज भी हो डैमेज गया। हो और यहाँ पे जिस तरह से इम्पैक्ट की वजह से शीशे टूट गए हैं, जी, जी। गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। जी जी। आप उड़ी में ही रहते हैं, पहले इस तरह के हालात थे? नहीं, मैंने नहीं देखे पहले इस तरह के हालात। पहली बार देखे आपने? आपकी उम्र क्या है? 18 साल। 18 साल। तो काफी डर का माहौल है बहुत ज़्यादा डर का माहौल है। अब लोग क्या चाहते हैं? और लोग अमन चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि वो सेफ्टी की जगह, यहाँ पे कुछ बंकर भी बने थे, वगैरह कुछ नहीं है हमें। आप बंकर चाहते हैं कि हमें बंकर बंकर मिलने, हमें सेफ्टी मिलनी चाहिए। हम बॉर्डर पे रहते हैं। जी। तो आप कितना दूर रहते हो यहाँ से? मैं तकरीबन यहाँ से 30 किलोमीटर। तो रात को लगातार फायरिंग होती है? उस परसों 7 तारीख को लगातार फायरिंग होती है, तो इससे काफी डर और खौफ का माहौल होगा। बहुत ज़्यादा बच्चे डर गए थे, बुजुर्ग डर गए थे। जी। तो यहाँ पे ये गोला पड़ा, ये तो काफी अंदर है। हाँ जी, और के मकान के सामने पड़ा है ना, बहुत नुकसान हुआ इनको, बुजुर्ग बच्चे सब डर गए थे। So here you can see the local people really scared and telling that what is the impact of Pakistani shelling and how much fear that has caused. This is just one place. We are trying to show you the situation here in this Uri village where a shell had Pakistani shell landed and caused damage. यहाँ पे एक बम फटा है, एक गोला पड़ा है और काफ़ी नुकसान हुआ है, और काफ़ी इलाकों में यहाँ गोले पड़े हैं, नुकसान हुआ है, लोग ज़ख्मी हुए हैं। किस तरह के? देखिए जनाब, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि असल में ये जो वाक़ा है ये पहलगाम से हुआ है, क्योंकि पहलगाम में जो आम लोगों की हत्या हुई है और उसके बाद हिंदुस्तान ने जो ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम दिया, उसका बदला लेना चाहती थी और वो उन्होंने लिया। और उसके बाद जो है पाकिस्तान ने जब वायलेशन वापस की तो उसके बाद आम लोग कहीं न कहीं निशाना बने उसके, क्योंकि मैं बोलना चाहता हूँ कि उड़ी में लगभग 12 घर जो हैं, उन 12 घरों को नुकसान हो चुका है। और आप यहाँ पे जिस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पे भी इस घर को, गाड़ी को, यहाँ पे बाइक एक टूटी और यहाँ पे भी नुकसान हुआ है उड़ी में। उड़ी के साथ साथ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इस वक्त कुछ हमारे 4 से 5 तहसीलें हैं जहाँ पे काफ़ी डर का माहौल बना है, क्योंकि रजौरी की बात की जाए 10 से 12 लोग मारे गए, 50 लोग ज़ख्मी हैं वहाँ पे। तो इसके बाद हमारे उड़ी के लोग जो हैं, काफ़ी लोग जो हैं घर छोड़ चुके हैं इस वक्त। तो एक सवाल आ रहा है कि लोग जो काफ़ी डरे हुए हैं, उनका सरकार ने कोई इवैक्यूएशन प्लान यहाँ पे किया है कि अगर लोगों को निकलना पड़े तो उनके लिए कोई जगह है जहाँ वो जा सकते हैं? सरकार की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई मदद है? देखिए जनाब, ये चीज़ है कि अभी तक वैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ जो एलजी साहब है उसने एक यहाँ पे एक प्रपोजल एक बनाया था, पीडी बैंकर्स जो 50 वो उड़ी में दे चुके हैं। क्योंकि ये तो मुझे लगता है कि ये तो पहले से एक शुरू होना चाहिए था, क्योंकि ये जल्दबाजी में कोई ऐसा काम तो नहीं होता है। लेकिन 50 बैंकर जो है मनोज सिन्हा जी इसी की सरकार में यहाँ पे बने चुके हैं उड़ी में, उससे पहले कोई बन चुके हैं 50 बैंकर बन चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आरएनबी डिपार्टमेंट ने, जो आरएनबी के डिपार्टमेंट के हाथ में था, लेकिन बदकिस्मती की बात है अभी भी उनमें पानी है। जब हमने कल देखे लोग उनमें जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनमें पानी था। तो लोग क्या कर रहे हैं? खुद से निकल रहे हैं सेफ इलाकों में, क्योंकि कोई जगह तो है नहीं, अगर बंकर है उनमें पानी है, उनकी मेंटेनेंस नहीं है, तो लोग क्या कर रहे हैं? मैं आपको बोलना चाहता हूं जनाब, देखिए यहाँ पे आबादी जो है मुझे लगता है कि लगभग 1.5 लाख आबादी है। यहाँ पे वोटर जो है बालिंग लोग हैं, 1,07,000 से ज़्यादा है। तो 50 बैंकर्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग पहुँचेंगे वो 300 तक पहुँचेंगे, तो बाकी लोग या 500 तक पहुँचेंगे। जो बाकी लोग हैं वो कहाँ जाएँ? हम तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है, क्योंकि यहाँ पे 2020 के बाद उड़ी के लोगों ने जो आराम की सांस ली थी वो 2020 के बाद और आज तक ली थी, लेकिन कल से उड़ी के लोगों में फिर एक मायूसकुन देखने को मिला, क्योंकि इससे पहले भी कंटिन्यू यहाँ पे सीज फायर जो वायलेशन हो रही थी उड़ी में, कंटिन्यू कहीं न कहीं 2 जाने 4 जाने, हमारी चौटाली में लोग मरे। उड़ी में लगभग 400 लोग ऐसे होंगे
जिनकी टांगे नहीं हैं। तो गवर्नमेंट से भी हम यही गुजारिश करना चाहते हैं कि इसका एक गवर्नमेंट भी एक परमानेंट सोल्यूशन निकाले, क्योंकि हमने भी परमानेंट सोल्यूशन क्या है? देखिए, जंग तो मुझे नहीं लगता है कि परमानेंट सोल्यूशन है। हमारे जो लोग हैं, हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे अमन हो, क्योंकि अगर यहाँ पे आप तो देखते हैं, दुनिया के हालात देखते हैं, रूस और यूक्रेन की बात की जाए तो रूस तो ताकतवर मुल्क है, लेकिन इस वक्त वो भी चाहता है कि जंग से दूर रहे। लेकिन जंग में जाना तो आसान है, लेकिन यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। और हमारा जो हिंदुस्तान मुल्क है, ये डेवलपमेंट की तरफ और जा रहा है। लेकिन लोगों की इस वक्त मदद करने की ज़रूरत है, उनकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाए। जिस तरह से पुंछ में 15 लोग मरे, काफ़ी लोग घायल हो गए, यहाँ पे भी लोग इंजर्ड हो गए और शेलिंग का सिलसिला लगातार चल रहा है। जी जी, कहीं न कहीं हमें भी दुख है, और हम ये चीज़ है कि इसमें जो है, मुझे नहीं लगता है कि किसी एमएलए का, किसी एमपी का, किसी मिनिस्टर का बेटा मरा। वो आम लोग थे जो कल भी मरे, क्योंकि बॉर्डर पे वो लोग रहते हैं जिनका गुजारा जो है बहुत कम होता है। और जो अभी मतलब ये चीज़ें, उड़ी में भी अगर कोई केएस आईएएस बनता है, वो उड़ी को छोड़ देता है। अगर कोई करना में केएस आईएएस बनता है, वो करना को छोड़ देता है। और इसमें जो बॉर्डर में जो लोग रह रहे हैं, वो पूरी तरह से गरीब लोग हैं, और इनके पास उतना गुजारा भी नहीं है अपने पैसे से कुछ पीडी बैंकर्स बनाएं, कुछ करें, तो वैसा भी नहीं है इनके पास कुछ। ये बताइए, यहाँ पे रोज़ रात को शेलिंग हो रही है, किस तरह के हालात हैं? हालात तो बहुत ख़राब है यहाँ। ऑटोमेटिक आपको पता है शेलिंग से क्या होता है। खास तौर पे हम लोगों को तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। ना यहाँ गवर्नमेंट ने कुछ दिया नहीं है, ना कोई मोर्चा है, ना कुछ है। बच्चों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। कम्युनिटी बंकर की बात हो रही थी कि कम्युनिटी बंकर बन गए हैं या नहीं, और ज़्यादा होने होने नहीं है। यहाँ तो कुछ भी हमने नहीं देखा। तो यहाँ तो परसों रात को 2 बजे से तो यहाँ तो ऑटोमेटिक यहाँ सब बाहर ही थे, अंदर तो कोई बैठा नहीं। क्या करते? यहाँ पे काफ़ी सालों से एक अमन था, वो अमन अब ख़त्म हो गया। वो फिर ख़त्म हो गया। आप तो क्या कर सकते हैं? 10 साल से हमने भी आराम किया था, ना कोई परेशानी थी, ना कोई चीज़। यहाँ तो पीसफुल इलाका है ऑलरेडी। अब यहाँ तो हमारे लिए फौज हमारे साथ है, हम फौज के साथ हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं इसमें। अब आपको लगता है हालात बिगड़ रहे हैं दिन ब दिन? हाँ, तो बहुत ख़राब है आज। हम तो यही गवर्नमेंट से अपील करते हैं, कुछ करके इनके इस बारे में सोचें हमारे बारे में। क्या गवर्नमेंट से क्या अपील? हम अपील करते हैं हालातों के बारे में देखें, हम या तो हम लोगों के लिए कुछ सोचें। आप चाहते हो यहाँ से आपको मूव करके सेफ इलाकों में पहुँचाना? ले जाएं और क्या। हम इस घर की बात कर रहे हैं, जिस तरह से ये घर दिख रहा है, तमाम यहाँ पे नुकसान दिख रहा है। द कैमरा कैन अगेन शो दैट वॉल पूरा तबाह हो गया है। एक ही गोला यहाँ पे गिरा है? नहीं, यहाँ तो वो काफ़ी गोले गिरे हैं, और भी मकान डैमेज हुए हैं। यहाँ यही एक मकान नहीं है, और भी हुए हैं, आगे भी हुए हैं। काफ़ी लोग जख्मी भी हो गए? काफ़ी लोग नहीं, जख्मी नहीं हुए। यहाँ जख्मी नहीं हुए। लोगों ने पहले ही अपने आप को साइड कर लिया था, जख्मी नहीं हुए। ऐसी क्यों बोला? तो मकान डैमेज हुए हैं। मकान डैमेज हुए और दिन ब दिन हालात बदतर हो रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इश्तियाक अहमद। आप क्या काम करते हैं? मैं शॉपकीपर हूँ। That is Ishtiaq Ahmed, a shopkeeper, telling us that what is the situation here. Indeed, the situation is very tense, particularly for people living at the line of control. They have been demanding that the authorities should evacuate them towards safety or construct community bunkers for them. So whenever there is shelling, they can move in those bunkers. There are some bunkers that have been created, but they are that have been constructed, but they are insufficient. That is what they are telling us. At the moment, the situation is tense. Already 15 people have lost their lives in the Poonch sector, where the shelling and firing has been more intense. Nevertheless, Uri has also witnessed firing and shelling from Pakistan on a daily basis for the last many days now. Reporting from Uri, this is Zafar Iqbal with Nazakat for Mojo Story.